So Maria, آپ اس کو لیڈ کریں پلیز. Hallelujah. Good morning, Auntie. Good morning. God bless you. مسیح کے جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. ہم خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں, اس کی بڑائی کرتے ہیں, اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں. تو آج کے دن کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو ہم اونچا کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہم دعا کریں گے, خدا ان کی شکر گزاری کریں گے گزرے ہوئے سارے دنوں کے لیے, آج کے لیے خدا ان کے نام کو جلال دیں گے, تاکہ جتنی دیر بھی ہم خدا ان کے حضور میں جھکے رہیں, دعائیں کریں, خدا ان کے کلام کو سنیں, تو خدا ان کا جلال ظاہر ہو, اس کا روح القدس ہمیں گائیڈ کرے, ہمیں سکھائے. ہاللیلویا. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ تو ہمارا خداوند, تو ہمارا بادشاہ ہے, تو رب الافواج ہے, تو کائنات کو بنانے والا, اس زمین کو تخلیق کرنے والا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرے بڑے کاموں کے لیے, تیری محبت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, جس کے لہو بہانے کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے, ہم نے شفا پائی ہے, بحالی پائی ہے. خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ساری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا اس پلیٹ فارم کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاتھ بڑھا تاکہ اس پلیٹ فارم سے خدا ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے, ہمیشہ تیرے نام کی بڑھائی ہوتی رہے. خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جتنے لوگوں نے جوائن کر لیا ہے خدا ان سب کے لیے بھی تیری برکت کو چاہتے ہیں. فیملیز کو تو ہر طرح سے تو محفوظ رکھ, اور جو بھی تک خدا میٹنگ کو جوائن نہیں کر سکے ساری رکاوٹوں کو دور کر, تاکہ خدا تیرے لوگ خدا میٹنگ کو جوائن کر سکیں اور ہم سب مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. انٹرنیٹ کے کنیکشن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں, سارے سسٹم کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تو اپنا ہاتھ بڑھا خداوند, تیرے لہو کو مانگتے ہیں, تیری پروٹیکشن میں دیتے ہیں خداوند. اور خداوند جتنی دیر بھی ہم تیرے حضور میں جھکے رہیں, دعائیں کریں خداوند, جتنی دیر بھی تیری حمد و ثنا کریں خداوند, سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں, مسیح کے نام میں مانگتے ہیں, آمین. 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 خدا ان کی تعریف کو, ہم خدا ان کے نام کو جلال دیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے بردر روی سے کہ وہ خدا ان کی ورشپ سٹارٹ کریں. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. ਸੋ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ. ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਏ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ. ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਏ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ. ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ, ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ
ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਡੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ 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 ਜਗ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਜਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਏ ਨੇ ਜਗ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਜਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲਕੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया खुदावन की तारीफ हो क्योंकि जब Hallelujah. हम इस पर ईमान करते हैं तो खुदावन हमारा खुदा हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है तो हम खुदावन की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा खुदावन के नाम को जलाल देंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है से कि वो खुदावन की वर्शिप में हमारा साथ दें खुदावंद में आप सबकी सलामती हो हम प्रस्तुत को जारी रखते हुए उसकी बारगाह में दाखिल होते हैं और उसका शुक्र बजा लाते हुए उसके गेट में दाखिल होते हैं थैंक यू हेवनली फादर In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophet, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For knowing this was our salvation, our sake you Jesus died. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit,
Supreme One, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Jesus. All the glories, honors, praises, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। तो हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नसीम से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। सिस्टर नसीम का आवाज आ रही है? हाँ, पता नहीं, शायद। तो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो अगर पादरी साहब, पास्टर रशीद जॉन साहब अगर सुन रहे हैं तो वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। प्रेस हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुदूस जलाली पिता खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते खुदा। हम कमजोर है लेकिन तू जोरावर बाप है खुदा। तेरे हमारी कमजोरियों तो शाजोरियों में बदलते खुदा। इस बात के लिए तेरे हजूर शुक्रगुजार है यीशु मसीह के नाम से खुदा। तेरी हजूरी के लिए खुदा, तेरे लगे हुए तक के लिए खुदा तेरे हजूर शुक्रगुजार है यीशु मसीह के नाम से खुदा। इस पूरी इबादत को तेरे ताबे करते खुदा। जितना वक्त गुजर चुका खुदा उसके लिए शुक्रगुजार है खुदा। जितना वक्त गुजरने का खुदा उसके लिए भी तेरा आसमान खुला मांगते यीशु मसीह के नाम से खुदा। जितने भी लोग ऑनलाइन होकर तेरे नाम को जलाल दे रहे खुदा, इस बात के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते यीशु मसीह के नाम से खुदा। तो हमारे लिए बड़े और चंगे काम करते हैं, इस बात के लिए शुक्रगुजार है खुदा। तो हमारी कमजोरियों को शाजोरियों में बदलने की कुदरत रखते हैं खुदा, इस बात के लिए शुक्रगुजार है यीशु मसीह के नाम से खुदा। मुत्तफिक होकर खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते कि तू तुम्हारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है खुदा। जितनी वर्शिप खुदा तेरे हुजूर कर चुके हैं खुदा, उसको बखूर की मानत कबूल फरमाना। और खुदा जितनी करने का खुदा उस पर भी बरकत देना यीशु मसीह के नाम से खुदा। जब तेरी आवाज सुनने का वक्त हो तो खुदा उस वक्त में भी खुदा तो हमारे दिलों को खुदा नर्म करना, ताकि तेरे कलाम की आवाज को सुनकर इधर से सुनकर उधर से निकालने वाले ना हो, बल्कि अपने दिलों में नक्श कर ले खुदा। आज के कलाम के वसीला से हर तरह के बंधन जुए यीशु नाम से टूटते चले जाए खुदा। तेरा कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला खुदा। तेरी बरकत तेरा मसा यीशु नाम से ठहर जाए यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। ओके, आज का कलाम तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम इसको जारी रखेंगे। मारिया, आप इसको लीड करती रहें प्लीज। तो मैं सिर्फ बाइबल की चंद वर्स से पढ़ के थोड़ा सा कलाम दूंगी, तो उसके सब थोड़ी वर्सेस मैं पढ़ के तो फिर कलाम दूंगी। जी, हम खुदा के वर्ष में आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। तो पादरी साहब, पास्टर रशीद साहब की बेटी जो हैं वो वर्शिप में हमारा साथ हैं। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आइए हम खुदावन की हजूरी में बढ़ेंगे, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आइए मिलकर वर्शिप करने वाले होंगे। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हर सुछाया है, वो आया है, यसू आया है। खुदा
अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे हालेलुया, क्योंकि उसने ताज अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है, खुदावा अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगी हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, प्रेज द लॉर्ड, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों पे आया है, सूली पे वो मुहा है हालेलुया, वो ही प्यार का रास्ता है हालेलुया, सूली पे वो मुआ है, वो ही प्यार का रास्ता है, जान दे के कलवरी पे खून भी बहाया है, ओ यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, अब्दी जीवन देने को हालेलुया, सच्ची खुशी देने को हालेलुया, अब्दी जीवन देने को सच्ची खुशी देने को उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, आमीन। हालेलुया, खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी प्रस्तिश के लिए, और सारा इज्जत और जलाल हम उसके नाम को देते हैं। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। खुदा की खादमा के दिल में जो खुदा ने कलाम रखा है हम वो सुने, तो हम उसके लिए दुआ भी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है भाई रवि से, ब्रदर रवि से, कि वो दुआ में रहनुमाई करें खुदा की खादमा के लिए और खुदा के कलाम के लिए। सो आइए बड़ी दीनगी के साथ हम अपने सिरों को झुकाएंगे और बहुत ही दीनगी के साथ प्रभु के चरणों में ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਲੀ ਸੈਂਚਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਣਾਉਣਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਜੁੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। खुदा की सिफारिश हो। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, तो खुदा की खादमा और खुदा के कलाम को हम वेलकम करेंगे। ताली बजाकर भी कर सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद
Praise you, Lord Jesus Christ, now and forever. Thank you, Lord, for this moment that you've given to us once again, Father, that you are present here, Lord. Thank you for your presence here, Lord. We sing a song before I say something. Father, I am about to say your word, and I'm going to ask the Holy Spirit come and pour onto me. So give me a wisdom, so can let me know the heart of the Father, so I can speak today, Father. The heart of the Father, what has for us today, so we can learn from your scriptures today and we can apply into our life. I will sing a song. Hallelujah. Hallelujah. You the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. You the Lord God Almighty reign. Holy, 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 holy. You're the Lord God Almighty reign. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You the Lord God Almighty reign. Amen. Amen. You the Lord God Almighty reign. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Father. Thank you for your presence. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your grace. Thank you for mercy and redemptions. And thank you for this privilege that we have in the mighty name of Lord Jesus Christ, so we can approach your throne of grace every time we want to. There's no limitations like you had in the ancient time, Lord. Now, because of the Holy Spirit, because of the Jesus Christ, we can come anytime and we can worship and glorify your name all the times, Lord. And Father, come and take a charge. Your church is present. Your peoples are here to open our spiritual eyes, open our minds and soul and brain, and give us an understanding of your scriptures so we can apply and we can learn about what you have made us, and you made us with some emotions, Lord. Father, the topic I am going to speak today, the speaking for the believer to grieve onto their loved one lost, whether it's true or it's not. Father, we need a wisdom so we can distinguish between that, because you have created the mankind with the emotions, with the sorrow emotion, and with the happiness emotions, Lord. So we can come before your throne of grace, and we are so privileged, we are so blessed that we are believer of the Lord Jesus Christ. Through him, whether we die, we will not die, we will live, Lord. Oh, Father, that you will reveal onto the remain who stayed onto the earth, people who are living among the living, Lord, shall be grieved onto their loss or not. Father, this is you have taught us, Lord, and you given us emotion, and you will distinguish us today, and you will give us the wisdom so we can have 100%, not 100%, or whatever you want us to have, a 200% understanding onto that, Lord. So we can talk about that. The topic you have given me today to speak, whether the believer should grieve on their loved one lost or not. Thank you, Father. All the honors, the glories, and the praises, Lord Jesus Christ. Come and take a charge and pour your spirit onto your servant. So your servant, pour your Holy Spirit onto us, Lord, onto me, Lord, especially, so I might not speak. I speak the heart of the Father through the Holy Spirit, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. तो आज का टॉपिक है कि हमारे कितने सारे बहन भाई जो हमारे से जुड़े हैं, उनके
کتنے لوڈ ون جو ہیں ان کے عزیز اور رشتے دار جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو بات ہو رہی تھی ایک دن کے بلیور کو جو ایماندار ہے اس کو تو افسوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اپنی حکمت سے کبھی بھی نہیں بولتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم اگر ایمان میں نہیں ہیں تو ہم مرتے ہیں تو ہماری موت ہوتی ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح میں مرتے ہیں تو ہم مرتے نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں. تو یہ ایک اٹل ٹروتھ ہے جو کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دیا گیا ہے، اور ہمیں یہی ہماری امید ہے، خوشی ہے ہم مسیح میں کہ ہم لوگ مریں گے نہیں بلکہ زندہ رہیں گے، اور جب اس کی بادشاہی آئے گی اس کی بادشاہی میں ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ زندوں اور مردوں کی عدالت کا فیوچر ایونٹ ہونا ہے. لیکن کیا ہم بلیور جو ہیں، کیا ہمارا کوئی اگر عزیز رشتہ دار اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہمیں اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ ہم ان پہ دکھ کریں ان کے جانے کا، اور ان کے جتنی ان کے اچھے کام ہے ان کو ہم یسوع مسیح میں ان کو زندہ کریں. تو میں خود اپنی طرف سے نہیں بولوں گی، میں پاک کلام سے پڑھوں گی، جو مجھے پاک کلام میں سے نظر آیا میں وہ بیان کروں گی. کیونکہ خداوند نے انسان کو بنایا اپنی طرح، اور اس نے خداوند نے انسان کو ایموشنز دیے کہ ایموشنز ٹو گریف اینڈ ایموشنز ٹو بی پلیز اینڈ ہیپی. تو یہ دونوں ایموشنز جو ہے نا وہ خداوند نے انسان میں رکھے ہیں کہ جب کوئی لاس ہو، جب کوئی گریف ہو تو اس پہ افسوس ہونا یا مورن کرنا آپ کے لیے واجب ہے. کیونکہ جب تک آپ مورن نہیں کرتے، جب تک آپ گریف نہیں کرتے، آپ نیکسٹ لیول پہ نہیں جا سکتے. پھر آپ ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ the thing which happened it was happened for reason. کیونکہ ہر چیز خداوند کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کا کنٹرول خداوند کرتا ہے، کہ خداوند ہی زندگی اور موت کا اختیار خداوند کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہم بلیور جب کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. لیکن میں یہ بھی پڑھوں گی کہ یہ ہرگز کہنا ضروری نہیں ہے کہ بھی ہم کوئی مر جائے تو اس پہ افسوس نہ کریں، کیونکہ یہ ایموشن کا کنٹرول جو ہے وہ خداوند کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. کیونکہ ہم جو دکھ میں ہوتے ہیں تو دکھ میں ہی ہم خداوند کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. تو پاک کلام میں پڑھوں گی اکلیسیاسس اس کا 7 باب، اس کی ایک آیت سے لے کر میں اس کو پڑھوں گی جب تک اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ a good name is the better than fine perfumes and the day of death better than the day of birth. In the God, it is better to go to house of the mourning than to go to a house of feasting. For the death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Frustration is better than laughter, because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of the fool is in the house of the pleasures. تو خداوند اس میں فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک نئے آیت نامے سے آیت پڑھنا شروع کرنا چاہوں گی. رومن اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت سے میں پڑھوں گی کہ پولس رسول ہمیں کیا کہتا ہے. کہ پولس رسول کہتا ہے کہ rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn, live in the harmony with one another, do not be proud but be willing to associate with the people of low positions, do not be conceited. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ
इक्लेसियास्ट में उसने कहा है कि भी कि वो इधर कंट्रास्ट दे रहा है गुड और बैड का, अच्छे और बुरे का, और गुड और बैड का, दुख और खुशी का, कि कंट्रास्ट है इसमें उसने दिया हुआ। कि वो ये कह रहा है कि गुड नेम इज बेटर देन द परफ्यूम, कि हमें अब अच्छा नाम कैरी करना है, कि हमारी मतलब जो रेपुटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम रिचेस हासिल करें। परफ्यूम को उसने रिचेस में कहा है कि हमारा नाम अच्छा होना चाहिए, अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारे पास धन दौलत हो लेकिन अच्छी रेपुटेशन ना हो। And the day of the death better than the day of the birth, क्योंकि डे ऑफ द डेथ ये होता है कि आपको दुनिया में आप पैदा होते हैं तो आपको दुनिया से लड़ना होता है, आपको दुनिया की हर वो चीज को बर्दाश्त करना होता है, उसी दुनिया से लड़ते हुए अपने आप अपने ईमान को अपने कायम रखना होता है और खुदावंद के साथ चलना होता है। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपकी स्ट्रगल है, तब तक आपको जिंदगी के फेड़ों से लड़ना होता है, तब तक आपको ऊंच नीच से जाना होता है। आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, हार्डशिप और बहुत सारी चीजें जिनका आपने मुकाबला करना होता है मजबूती के साथ, और आप उसका मुकाबला उस वक्त कर सकते हैं जब आपके साथ खुदावंद होता है। तो वो कहता है कि जिंदगी पैदाइश की निस्बत डेथ ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो आप जहाँ से आए होते हैं आप वहां वापस चले जाते हैं, जो कि हेवन है। तो इसलिए मतलब वहां फिर आपको आराम और सुकून होता है, क्योंकि जिंदगी के दौरान आपको सुकून नहीं होता, आपकी सारी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरती है। It is the better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. वो कह रहा है कि खुदावंद ने कहा है कि आप जिसके साथ जिस घर में दुख है, तकलीफ है, आपका खुशी करना ज्यादा वाजिब नहीं, बल्कि वे ज्यादा वाजिब है कि आप दुख वाले घर में जाएं, उस घर में जाएं जहाँ पे डेथ हुई है, और उनके साथ मिलकर अफसोस करें। ये खुदावंद एक बलीवर को हुक्म देता है कि it's better to go into the house of the mourning than to go to the house of the feast. शादी में जाने के बजाय या शादियाना के साथ जाने की बजाय आपके लिए वाजिब है कि आप दुख वाले घर में जाएं। ये खुदावंद की नजर में ज्यादा मकबूल है। For the death is the destiny of everyone. क्योंकि जब हम किसी की डेथ पे अफसोस करते हैं, क्योंकि हम इस चीज को रखते हैं कि खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिया, जो उसका सबसे बड़ा हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल और पूरे जान और पूरी दिल से और अपनी पूरी रूह से प्यार कर। और उसका दूसरा बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार कर। हमारा प्यार, खुदावंद का प्यार हमें तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हम किसी दूसरे को अपनी जगह पे रख के उसकी फीलिंग को सोच कर या उसके साथ एम्पैथी रख के तो उसी की जो फीलिंग है उसको हम महसूस करके और उसके दुख और दर्द में शरीक हो। यही खुदावंद की नजर में ज्यादा मकबूल है, बजाय इसके कि हम खुशी वाले घर जाके तो खुशी करें। वो इसलिए कह रहा है कि जब आप दुख और तकलीफ में होते हैं तो आपका दिल जो क्राई कर रहा होता है, वो आपका रूह जो है ना, आपके साथ खुदावंद का रूह भी क्राई कर रहा होता है। तो जब खुदावंद का रूह क्राई कर रहा होता है तब आपके पास खुदावंद की जरूरी होती है। फिर खुदावंद का रूह ही आपको डीप पीस देता है, बजाय इसके कि जब आप खुशी के घर में जाते हैं या लाफ्टर में रहते हैं। तो जब आप खुशी की मोड में रहते हैं, खुशी की स्टेट में रहते हैं, तो आप खुदावंद की हुजूरी में नहीं होते। आप वो जरूरी चीजें जो जिंदगी में है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि डेथ जो है वो तो सब पे आनी है। तो इससे बेहतर है कि हम उन लोगों के साथ मिलकर दुख करें। एक बिलीवर के लिए ये भी वाजिब है कि वो दुख वाले घर में जाए, बजाय इसके कि वो शादमानी वाले घर में जाए। तो खुदावंद को ये मकबूल है, क्योंकि खुदावंद की ब्लेसिंग या खुदावंद की प्रेजेंस या खुदावंद की हुजूरी या खुदावंद की प्यार हम में ये एक साइकिल है
वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब हम किसी दूसरे के दुख को महसूस करके उसके उसमें शरीक हों, जब हम किसी दूसरे को अपनी जगह पे रख के उसको तरजीह दें, जब हम अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करते हैं, तब जाके खुदावंद का प्यार हमें कंप्लीट होता है। मैं इसको साइकिल कहती हूँ कि साइकिल ये है कि मैं और आप, जैसे मारिया है, जैसे प्रोबल है, जैसे आप हैं, मतलब रवि है, और सिस्टर नसीम है, मुस्कान है, तो आप लोग और हम हैं, तो हमारा प्यार खुदावंद में कबूल तब तक नहीं होगा जब हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे। जब हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तो ये साइकिल ऊपर जाएगा बाप के पास, और बाप का प्यार नीचे आएगा हमारी जिंदगी में। तो इसी तरह ये बाप का प्यार है कि हम मतलब उसकी इस बात को माने कि वो, क्योंकि दुख तकलीफ बीमारी जो है हर इंसान का हिस्सा है, वो किसी की ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी बंदे को है जिसको जो दुख में है, क्योंकि कल वो दुख में है, आज हम में दुख में होंगे। इसलिए हम बिलीवर के लिए वाजिब है कि हम दुख के घर में जाएं, उसको ज्यादा तरजीह दें बजाय कि उसके मतलब खुशी करें और मतलब उनको मतलब उनकी फीलिंग को हर्ट करें। तो ये खुदावंद को ज्यादा कबूल है। फ्रस्ट्रेशन इज बेटर देन लाफ्टर। वो फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि दुख जो है वो हंसी से ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जब हम, मैंने पहले भी कहा कि जब हम दुख की हालत में होते हैं हम खुदावंद की नजर में ज्यादा कबूल करते हैं। ये कंट्रास्ट है, क्योंकि खुशी में हम सब कुछ भूल जाते हैं, खुशी में हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज को भूल जाते हैं। हमें अवेयरनेस नहीं होती, हम अवेयर नहीं होते कि हमारी जो नेसेसरी चीजें जो जिंदगी में टेक प्लेस करनी है उस पे शैतान कभी भी हमला कर सकता है। तो इसीलिए हमें दुख की हालत में, या हमें उसको लिमिटेशन की हालत, लिमिटेशन जो होता है, एक लिमिटेशन जो होता है कि जब हम खुदा से क्राई करते हैं, तो वो कह रहा है कि फ्रस्ट्रेशन इज बेटर देन द हैप्पीनेस, द लाफ्टर। हंसी से ज्यादा, मतलब दुखी दिल हंसी से ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? कि जब हम लिमिटेशन में होते हैं, हम खुदावन से लिमिटेशन कर रहे होते हैं, खुदावन से ग्रीव कर रहे होते हैं, और हमारा दिल जो है ना खुदावन की तरफ होता है, हमारा दिल खुदावन के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए खुदावन जो है ना हमेशा जो मतलब दुखी हार्ट है उसको ही पीस देने की फिक्र में रहता है, बल्कि उसको नहीं कि जो मतलब खुशी में है या लाफ्टर में, क्योंकि खुदावन को पता है कि ये तो खुशी में है। खुदावन उनकी परवाह नहीं करता, खुदावन हमेशा उनकी परवाह करता है जो दुख, तकलीफ और बीमारी में है। तो खुदावन यही कहता है, हमको यही सिखाना चाहता है कि हम जो इंसान है, हमारे अंदर ये खुदावन ने इमोशंस रखे हुए हैं, रोने के भी, दुख के भी, खुशी के भी, लेकिन यह है कि खुशी उस चीज पे करो जो खुदावन की तरफ से हमें मिलती है। खुशी उस चीज की करो कि खुदावन हमारे साथ है। हंसो उस पे कि खुदावन यीशु मसीह जो हमारा जिंदा है, वो नजात जिंदा हमारे साथ है। यही हमारी खुशी है, और खुदावन की खुशी इसी में पूरी हो सकती है, ना कि दुनिया की खुशियों में खोकर हमारी खुशी पूरी हो सकती है। The heart of the wise is the house of the morning, but the heart of the fool is the house of the pleasure. वो कह रहा है कि जो वाइज इंसान है, जो मतलब अक्लमंद इंसान है, उसका दिल जो है ना वो हमेशा जो जिस घर में दुख है, तकलीफ है, उसकी तरफ होता है। लेकिन जो फूल है उसका, वो उनको हेट जानकर, जो कि बेवकूफ है, वो हेट जानकर उसके घर प्लेजर्स में रहता है, वो हर वक्त उसका दिल खुशी में लगा रहता है। लेकिन खुशी जो है ना वो आपको खुदावन नहीं दिला सकती, खुदावन की हुजूरी नहीं दिला सकती। लेकिन आपका जो मॉर्निंग हार्ट है, आपका जो दुख है, जो तकलीफ है, वो आपको खुदावन की हुजूरी में ज्यादा रख सकता है, और खुदावन की प्रेजेंस में ज्यादा रख सकता है, जिसमें खुदावन आपको सबसे ज्यादा अपने हिफाजत में लेता है और अपने सुकून से आपको अपना सुकून देता है। आगे रोमन में वो जो कह रहा है कि रोमन में कह रहा है कि रिजॉइस, क्योंकि खुदावन ने ये भी कह रहा है कि जब खुदावन में कोई खुशी मना रहा है, जब खुदावन का शुक्र अदा कर रहा है, कोई मतलब जैसे कि अय्यूब नबी खुदावन का शुक्र अदा करता था और वो अपने घर में इबादत करवाता था और फीस्ट भी करता था, तो वो खुदावन के शुक्र करने के लिए खुशी मनाता था। तो खुदावन कहता है कि खुशी वाले घर में खुशी करो उनके साथ जो खुश है, दुख करो उनके साथ जो दुखी है।
तो खुदावन कह रहा है कि rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. जो ग्रीफ में है, जो दुख में है, जो अफसोस की हालत में अफसुर्दा है, आप उनके साथ मिलकर ग्रीफ करो, आप उनके साथ मिलकर उनके दुख में शामिल हो, आप उनके साथ उसकी मतलब जो अफसोस है, अफसुर्दा दिल के साथ आप भी अफसुर्दा दिल हो, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशन को मतलब दूसरे के इमोशन को अपना इमोशन समझ के महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप खुदावन की नजर में मकबूल नहीं होंगे। फिर वो कहता है कि mourn with those who mourn with us, okay, live in the harmony with one another. इसका कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिल के रहो, एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करो। एक दूसरा इंसान आपके साथ में है जो अपना आपका पड़ोसी है, कोई भी आपका पड़ोसी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार या आपके बहन भाई हैं, कोई भी है, कि जब आप किसी दूसरे इंसान को मिलते हैं तो उनके साथ मेल मिलाप से रहो, उनके साथ खुशी से रहो, उनके साथ साफ दिल से चलो, उनके साथ हार्मोनी में रहो, मतलब इस तरह रहो कि जैसे तुम अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तब ही जब जाके मिलेगा जब आप दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जब आप दूसरे के दुख को महसूस करते हैं, जब आप दूसरे को प्यार करते हैं, जब आप दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, जब आप दूसरे की दुख तकलीफ को महसूस करते हैं, तब जाके आपका जो वो ब्लेसिंग साइकिल है खुदावंद की नजर में कबूल होता है। Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. तो कहता है कि अपने आप में खुशी ना करो, अपने आप पे ब्राइव ना करो। वो जो सेल्फ सेंटर बंदा होता है, वो नार्सिसिस्ट बंदा होता है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपनी हमदो सताइश में रहता है, अब प्राउडली अपने आप को ही कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा। ये जो है वो खुदावंद इसको कहता है वो कंसाइटिस्ट है। कंसाइटेड का मतलब है कि वो नार्सिसिस्ट है, वो ज़हनी मरीज है, वो बंदा जो सिर्फ अपने प्राउड, अपने लिए प्राउड फील करता है, दूसरों को मतलब ठीक है काउंसलिंग भी अच्छी है, दूसरों को काउंसलिंग करना, दूसरों को उसके दुख में शरीक होना, उसको तसल्ली देना, मतलब ये खुदावंद की नजर में ज्यादा कबूल है बजाय इसके कि ब्राइव करना कि मैं मतलब प्राउडली ब्राइव करना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूंगा। ठीक है, हमें मतलब इन चीजों अपने हमें प्राउड नहीं होना किसी भी चीज से। हम जो कुछ भी करते हैं हम खुदावंद के जलाल के लिए करते हैं। हमारी जो अप्रिसिएशन जो होनी चाहिए, जो कुछ करते हैं वो खुदावंद से ऊपर से आनी चाहिए, ना कि बल्कि हम उसका खुद ढोरा पीटे, ना कि हम खुद कहें कि देखो हमने आज ये किया, हमने वो किया। ठीक है, ये गवाही देना जरूरी है, खुदावंद कलीसिया को बढ़ाने के लिए गवाही देना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त अपनी उस चीजों पे ड्राइव करते रहे, आप हर वक्त अपनी ही दुनिया में मस्त रहे और दूसरों की फीलिंग को भूल जाए, दूसरों के मतलब चीज का ख्याल रखें, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखें, दूसरों की स्पेस का ख्याल रखें। ये चीजें आप लोग मतलब हम सबको मतलब हमारे लिए करना बहुत जरूरी है कि हमें दूसरे बंदे की प्लान की, दूसरे बंदे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते, जब हम दूसरों की फीलिंग में शामिल नहीं होते, तो हम ईमानदार कहाँ के ठहरे? हम ईमानदार नहीं है। ईमानदार का सिर्फ यही नहीं है कि ठीक है कि हम यीशु ने बपतिस्मा ले लिया और अब यीशु में हम मकबूल हो गए हैं, तो अब हमने निजात हासिल कर ली है, तो अब हम जिंदा हो जाएंगे, हमें जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जिंदगी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उसके जो हुक्म है वो नहीं मानेंगे। बेशक हम मतलब कहे कि हम मतलब बहुत चंदा देते हैं, बहुत लेक्चर देते हैं, बहुत ज्यादा हम रिचुअल चीजें करते हैं, हम मतलब जो कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, हमारे अंदर वो प्यार नहीं है जो खुदावंद हमारे अंदर दूसरों के लिए देखना चाहता है, तो फिर वो मतलब खुदावंद ने बपतिस्मा लेना या खुदावंद की खिदमत करना वो भी मतलब इतनी मतलब खुदावंद की नजर में मकबूल नहीं होती, क्योंकि खुदावंद
जब देखे कि खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि शरीयत के जमाने में तो ये था कि वो फिजिकली जब गुनाह नहीं करते थे तो मतलब उनका तो दरवाजा चौड़ा था, तो फिर भी उनको साल्वेशन मिलती थी। लेकिन यीशु के जमाने में आके यीशु ने वो दरवाजा तंग कर दिया है। उसने कहा है कि जब आप मतलब शो ऑफ करते हो, आंखों दूसरों की नजर में आप शो ऑफ तो कर देते हो, लेकिन आप अगर अंदर से नहीं करते तो फिर आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप तंग दरवाजे पे नहीं है। क्योंकि तंग दरवाजे पे रहना, दरवाजा बहुत सुकड़ा है यीशु के साथ चलने का और हमेशा की जिंदगी हासिल करने का। हमारा दरवाजा बहुत तंग है कि हमें अपनी सोच, अपने ख्याल और अपने इमोशन और अपने फिजिकली वर्बल और नॉन वर्बल अपने बॉडी जेस्चर जो भी हम जिस तरह के, क्योंकि खुद जो आजकल तो खुदावंद की रूह ने इतनी हिकमत दी है कि खुदावंद दूसरे बंदे के बॉडी जेस्चर से अंदाजा लगा लेता है कि बंदा जो अंदर से साफ है या नहीं है। तो आज का जमाना जो है ना वो बहुत फास्ट है, कंप्यूटर जमाना है। मतलब बच्चे भी जो है ना खुदावंद के रूह से इन चीजों को पहचान लेते हैं। तो हमें जो भी करना है, जो जिस तरह भी चलना है, हमें सोच समझ कर, मतलब हमारे अपने ख्याल, जो अपने सारे ख्याल, अपनी जो सारा दिल, अपनी जो सारी जान, उसमें हमने प्योर होकर खुदावंद के साथ चलना है। और वही प्योर थॉट हमें अपने उस बहन भाई के लिए जो दुख और तकलीफ में है और जिसको हमारी जरूरत है उसके साथ शेयर करना है। इसी तरह ही खुदावंद में मतलब खुदावंद की खुशी हमें पूरी होगी और इसी तरह हम अपने सर पे खुदावंद के ग्लोरी का ताज लेंगे, क्योंकि हमें सुपड़े दरवाजे पे रहना है, ना कि हमें वाइट दरवाजे पे। क्योंकि यीशु की तरफ जो रास्ता जाता है वो सुपड़ा है, वो बहुत ही तंग है, वो इतना तंग है कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का रूह कुदुस हमारे साथ है। खुदावंद का अपना रूह जो कि शुरू से ही पानियों पे जुम्बश करता था, जमीन पर था और अभी तक है और हमारे दरमियान है मसीह यीशु के वसीला से। वही हमें ये तय की बातें बताता है, वही हमारे रूह को प्योर करता है, वही हमारी फीलिंग को दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए शामिल करता है। तो मैं आज सारे उन बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि जिनके बहन अजीज और रिश्तेदार हमारे साथ थे लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं है, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदा वापस मानी जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। और हम इस चीज में खुशी मनाते हैं कि खुदा उनके तूने हमें हमेशा की मसीह यीशु के वसीले से हमेशा की जिंदगी दी है, लेकिन वापस मानी ये इमोशन भी तूने हमारे अंदर रखे हैं कि हम दुख के टाइम दुख करें, उस पर रोएं, उस पर अफसोस करें, क्योंकि वो हमारे साथ थे लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमें इस चीज में तसल्ली है कि वो तेरे पास हैं, ताकि वो दुनिया के इस साइड पे नहीं, वो दूसरी साइड पे वो हेवन में तेरे साथ है। लेकिन जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो वो जिंदा किए जाएंगे। तेरा शुक्र करते हैं इन सारी चीजों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, ये इमोशन तो तेरे पास भी थे जब तूने जब लाजरस की डेथ पे तू रोया था वापस मानी, कि तूने उसके लिए दुख किया था, क्योंकि ये तूने हमें बताया था कि एक ह्यूमन नेचर है कि हम एक मौत पर दुख तकलीफ करते हैं। लेकिन आए खुदाम तू हमें तसल्ली भी देता है, तुम्हें तशफ़ी भी देता है खुदाम, और तुम्हें हमें हिम्मत और ताकत भी देता है उस दुख से निकलने के लिए। तेरा शुक्र अदा करते। तेरी नजर में आए खुदाम दुख के घर में जाने की बजाय खुशी के घर में जाने से बेहतर है। तेरी नजर में आए खुदाम के हम उन अजीजों रिश्तेदारों के साथ मिलकर हम अफसोस करें, उनकी फीलिंग को महसूस करें, उनको तेरे नाम में तसल्ली दें, ये वाजिब है खुदाम। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदाम कि ये तूने हमें ये मौका बख्शा आज। अय खुदाम, आज जो मैंने बोला है खुदाम तेरे पाक रूह के वसीले से बोला, जो तूने मुझे दिया है खुदाम, मैंने तेरे लोगों को बताया है खुदाम। अय खुदाम, अगर इसमें कोई कमी कमजोरी रह गई है तो हम सबके रूहानी आंखों को खोल दे, ताकि हम रूह से भरकर उसकी सच्चाई को जाने और उसकी डेप्थ में जाकर इसको समझे आए खुदाम। और आए खुदाम, तेरा शुक्र करती हूँ तेरे प्यारे बेटे के लिए कि खुदाम जिसको तूने जमीन पर भेजा, जिसके वसीले से तूने हमें फिर से मिला लिया, और फिर से तूने, तेरा शुक्र करती है कि तूने उसके वसीले से हमें उसके वसीले से जो मरता है वो मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा की जिंदगी पाता है खुदाम। तो हमें अपने बेटे की तरह बना दे, अपने पाक रूह से भरे रखा है खुदाम, ताकि हम सुकड़े दरवाजे पर चलते रहे खुदाम। दराए खुदाम, हम जो ईमानदार है खुदाम, तेरी नजर में ईमानदार है,
क्योंकि आए खुदावंद अगर हम तेरी नजर में ईमानदार है तो इसी तरह हमें अपने पाक कलाम के वसीले से हमें सिखा, अपने रूह कुदस के वसीले से हमें हिकमत और दनाई दे। हम उन अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए आए खुदाम जिनके आए खुदाम लव्ड वन उनको छोड़ गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे आए खुदाम, वो तेरे पास है, मसीह यीशु के पास है खुदाम, उनके लिए तेरा शुक्र करती हैं खुदाम को तेरे साथ जिंदा किए जाएंगे। लेकिन बाकी जो आए खुदाम इस जमीन पर हैं, उनके जो जिंदों की जमीन पर हैं, उनके लिए तेरा तेरा आई प्रे फॉर योर पीस एंड योर स्ट्रेंथ एंड योर कंफर्ट, और तेरा तेरा आराम, तेरा सुकून, तेरी कंफर्ट और तेरी आए खुदाम ताकत उनके साथ रहे, ताकि वो इन दुख से निकल कर आए खुदाम तेरी मर्जी को पूरा कर सके आए खुदाम। तो इसी तरह हमें तसल्ली शफी अता करता रहे खुदाम, तो अपने रूह से भर दे तेरा पीस जो कि तेरी तरफ से आता है खुदाम, तेरा डी पीस हमेशा हमारे साथ रहे आए खुदाम, और आए खुदाम तेरी पाक हजूरी हमारे साथ रहे, और तो और बढ़ के आए खुदाम तेरा ना खत्म होने वाला फजल हमारे साथ हमेशा रहे आए खुदाम, क्योंकि हमें तेरा फजल ही चाहिए, हमारे लिए तेरा फजल ही दरकार है खुदाम। तुझसे मांगती हूँ अपने सारे अजीज रिश्तेदारों के लिए जो जहाँ जहाँ आए खुदाम, तुम सबको अपनी पनाह में रख, अपनी बरकत से मालामाल कर, तेरा पीस, तेरा लव, तेरी मर्सी, तेरे ग्रेस, तेरा होली स्पिरिट सबके साथ हो आए खुदाम। और आए खुदाम तेरा इस मौके के लिए भी शुक्र करती कि तूने बावजूद इसके कि हम कहीं बाहर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आए खुदाम तूने हमें मौका बख्शा कि तेरे तख्त के सामने आ सके, तेरे फजल के तख्त सामने आकर और यीशु के नाम में तेरी हमद सताइश कर सके, तेरे से अपने बाप से मलाप कर सके, ताकि हम अपने बाप की मर्जी में चल सके और तेरे रूह में आज सारा दिन चले। आज सारा दिन आए खुदाम तू हमारी हिफाजत करना, हम जहाँ भी जाएं तो हमारे साथ रहना, तेरी पाक हजूरी हमारे साथ रहे, हमें खैरियत से हर जगह लेकर जाना और खैरियत से वापस अपने परों पर उठाकर घर लाना है खुदाम। सारे बच्चे जो इस वक्त आए खुदाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में जहाँ भी आए खुदाम, वहाँ तू मौजूद रहा है खुदाम। सबके लिए बरकत चाहती हूँ, सबके दिलों को मुबारक करना और सबको अपनी हिफाजत में रखना। जिस तरह तूने हम सबको इस पेस्टिलेंस से, इस प्लेग से, इस कोविड-19 से पास में बचा कर अभी तक बचा कर रखा है, आने वाले दिनों में भी तू इसी तरह में बचा कर रखेगा, क्योंकि तेरा वादा है कि whoever take refuge under my feather be protected and I will keep them in my divine protections Lord। यीशु नासरी तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बच्चों की फिक्र में हर वक्त, अपने बच्चों को अपनी पनाह में हर वक्त रखता है। इसी तरह तो हमें संभाले रख, बाकी तमाम बनीनू इंसान को जो कि तेरे बिलीवर है, ना बिलीवर है, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उन सब पर तेरा रिवाइवल चाहते हैं कि तू उनकी रूहानी आंखों को खोल बाप आसमानी, तू उनको अपनी पहचान दे, अपनी निजात का तजर्बा दे, अपने रूह से भर दे, रूह से खोल दे, ताकि वो तेरे अपने प्यारे बेटे यीशु अपने निजात दहिंदा के साथ मिलाप करे, ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी पाए। बाप आसमानी तेरा प्लान सारे लोगों को निजात देना है, ना कि हम सबको। जो तेरी हजूरी में आता है खुदाम वो तेरी निजात हासिल करता है खुदाम, तेरी रूह में आता है तेरी निजात हासिल करता है। तेरा रूह तेरा बेटा है यीशु नासरी है खुदाम, जो उसमें आता है खुदाम वो निजात हासिल करता है। हम सब के लिए यीशु को मांगते हैं खुदाम, हम सब के लिए तेरी निजात को मांगते हैं हम खुदाम। हमारे घरों में तू मौजूद है, हमारे घरों में तेरी हजूरी हर वक्त रहे है खुदाम, हमारे घरों में किसी चीज की कमी ना हो है खुदाम, हमारे घरों को तू अपना आसमान खोल कर अपनी बरकत से मालामाल कराए खुदाम। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है खुदाम, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदाम कि तू ही उनके सामने, तूने साम 91 में फरमाया कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए दस्तखां बिछाऊंगा, तू ही आए खुदाम उन सबके लिए दस्तखां बिछा, तू ही उनको जॉब मुहैया कर। जितने एम्प्लॉयर्स आए खुदाम हमारे, उन सब के लिए बरकत चाहती है, तो उनके दिलों को हम सब के लिए मुबारक कराए खुदाम, उनके दिल हमेशा हमारी तरफ मुबारक रहे खुदाम, उनके लिए बरकत मांगते हैं खुदाम। आए खुदाम फिर से दुआ करते हैं खुदाम, जो अजीज और रिश्तेदार दुख और तकलीफ बीमारियों की हालत में है, जो हमारे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है पूरा हफ्ता है खुदाम, हम सबको खुदाम हम भूल गए, लेकिन तेरे तख्त के सामने वो लाई जा चुकी है मसीह यीशु के वसीला से। फिर से तुझसे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि तू उन पर निगाह कर और अपना आसमान खोल खोल कर यीशु के नाम से उनको शफा जारी कराए खुदाम, उनको शफा दे, अपने फजल से उनको भर दे, तेरा पाक उनके साथ रहे आए खुदाम। और आए खुदाम तुझसे दुआ करती हूँ फिर से कि आज तू हमारी हिफाजत करना और हमारे साथ रहना, हम सब के लिए तेरी बरकत हो मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में। Your peace, love, mercy, and grace, and the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Amen. Amen.
आमीन। अब हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे जो बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे तेरी आसमान पर पुरती मर्जी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की हमारे रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कसूर को माफ करते हैं करते हैं, कि हमारे माफ किसी माफ कर, हमें हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बच, के बादशाही तुझे तो चला, तुझे तो चला हमेशा हमेशा से तेरे लिए। आमीन आमीन। अब कलामे बरकत मारिया के साथ कलामे बरकत सिस्टर मारिया अदा करेंगी। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, उन सारे लोगों के साथ खुदा जो तेरे नाम को जलाल करते हैं, और बनी इसराइल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबकी आमीन। सलामती हो। आपकी सलामती।